अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं सब? मैम ठीक ठाक अलहमदिल्ला, आप सुनाएं। बिल्कुल अल्लाह का। ये आज हम स्टार्ट करेंगे करंट ग्लोबल पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, उसके चैलेंजेस और कुछ पॉलिसीज। पब्लिक हेल्थ को लेकर हमारे इन्वायरमेंट में जो जो हमारे चैलेंजेस हमें आते हैं, जो जो सी डेफिशिएंसीज या डिजीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में या ग्लोबली हैं, वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं और कितने परसेंट जो हमारे जो टारगेट ग्रुप हैं उससे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। फर्स्ट है माल न्यूट्रिशन एंड काजेस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी। A survey conducted in 2008 in which noticed that mostly cardiovascular diseases, respiratory conditions, poor and cancer. Most of these diseases spread in globally. Mm, These diseases due to the poor nutrition, stress, because nutrition and diet affect the most of the diseases and cause the poor condition. Poor free radicals produce that damage health. Our body go into stress if food is not healthy. um, जो सर्वे 2008 में कंडक्ट किया गया था उसमें ये भी नोटिस किया गया कि ओबेसिटी इज द लीडिंग काज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस and due to the obesity cardiovascular diseases, most of like ये नीचे जो है ischemic heart disease, also known as coronary artery disease, it is a condition that affect the supply of blood to the heart. The blood vessels are narrow or blocked due to the deposition of cholesterol in their wall. इसके साथ साथ cerebral vascular diseases भी इसमें आएंगी CVD में. Refers to a group of conditions that affect the circulation of blood to the brain, causing limited or no blood flow to affected areas of the brain. Atherosclerosis is one of the conditions that can cause cerebral vascular diseases. Most of the cardiovascular diseases is due to the high intake of salt. WHO recommended that the daily requirement of salt is 23 milligram mg. If we take more than 2300 milligram mg, that causes a problem. And if we consume excess amount of fruit and vegetables, that reduce the causes of cancer. Because in fruit and vegetables most of the antioxidants are present, and antioxidants are most important for us because we all know that antioxidants are compounds that inhibit oxidation. Oxidation is a chemical reaction that can produce free radicals, and free radicals cause a chain reaction that may damage our cells of organism and cause many problems. And if we intake most of the fruit and vegetables, that can reduce the risk of cancer as well as cardiovascular diseases. Infectious diseases in which first present is diarrhea. Dehydration causes disability and death. A survey was conducted in which we know that death rate of adults between 15 to 59 years, death rate is twice in Africa due to diarrhea. डायरिया मोस्टली माल न्यूट्रिशन में आएगा कि अगर हमारी जो डाइट ठीक नहीं है या हम डिहाइड्रेशन हमें हो गई है,
इस वजह से हमारा जो डिसेबिलिटी रेट है वो बढ़ जाएगा। In 2011, 6.9 million children under the 5 year died because of pneumonia, diarrhea, malaria, and neonatal conditions. Neonatal diseases due to the weakness of immune system, no attain the proper nutrition, according to the WHO data. And 20% अंडर न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो 35% ऑफ द चाइल्ड डेथ बिकॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन and 20% of maternal death due to the iron deficiency of maternal short stitches. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो हमने पिछली स्लाइड्स में भी डिस्कस किया था, उसमें से 20% जो डेथ है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से होंगी। ये ज़्यादातर मतलब परसेंटेजेस ही हम पढ़ेंगे। आई नो ये काफ़ी ड्राई लग रहा होगा आप सबको, लेकिन हम यहाँ पे चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमें ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि जो एक डिजीज़ है वो ग्लोबली कितनी परसेंट है और वो कितने परसेंट लोगों को अफेक्ट कर रही है। तो हाँ, आप लोग परेशान ना होना, ये पेपर्स में मैं परसेंटेजेस नहीं पूछूंगी। ये एक डाटा है जो यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी था कंटेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि परसेंटेजेस याद करना मेरा ख्याल मुश्किल हो जाता है काफ़ी। यस मैम। ये जो 6 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये जो नीचे हैं ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ये 6 हैं जो हमारे गोल्स हैं। ये चैलेंजेस की बात कर रहे हैं ना हम पब्लिक हेल्थ में, तो इसमें हमारे गोल्स क्या हैं कि जिन पर हमने ज़्यादातर काम करना है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट ने, वो ये है कि सबसे पहले माल न्यूट्रिशन आएगा। ये जो अभी हम सारा डिस्कस कर रहे हैं पीछे कि इन्फेक्शियस डिजीजेस कितनी थी और ये कार्डियोवास्कुलर भी और कैंसर भी सारा। तो इसके जो हमारे गोल्स हैं उसमें पहले माल न्यूट्रिशन आएगा कि हमने ये सारी माल न्यूट्रिशन को हमने कम कैसे करना है ग्लोबली। उसके बाद एजुकेशन आएगा कि हमने अपने लोगों को एजुकेट कैसे करना है। फिर जेंडर इक्वालिटी आएगा कि जेंडर इक्वालिटी बीच में नहीं लेकर आनी, हर टारगेट ग्रुप को चाहे वो किसी से भी ताल्लुक उसका है। और फोर्थ में हमारे आ जाएगा चाइल्ड मोर्टेलिटी, क्योंकि हमारे अंडर 5 ईयर जो हैं वो काफ़ी टारगेट ग्रुप में आते हैं जो हमारे बेबीज़ हैं। फिर मेटरनल डेथ आएगा, क्योंकि हम पिछली स्लाइड्स में भी पढ़ चुके हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी प्रेग्नेंट वुमेन में होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ हो जाती हैं। और ना सिर्फ वो मेटरनल भी अफेक्ट होती है उससे, तो उससे फिर बेबी की लाइफ भी थ्रू आउट अफेक्ट होती है। तो ये 5th नंबर पे मेटरनल डेथ आएगा और 6th नंबर पे हमारा HIV आएगा। ये सारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं 6, ये टारगेट थे और इन पर इन्होंने काम किया गया, जिस पर ये टारगेट है रिडक्शन ऑफ 67% इन चाइल्ड मोर्टेलिटी। जैसे ये 4th नंबर पर चाइल्ड मोर्टेलिटी है ना, इस पे WHO वालों ने जो भी पॉलिसीज बनाई थी उस पर वर्क किया गया, जिसकी वजह से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 4 जो है उसमें रिडक्शन हुई है 67%। एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 5th जो है मैटरनल डेथ, उसकी अकॉर्डिंग टू 2015 डाटा 75% रिडक्शन हुई थी मैटरनल डेथ में। वो इसलिए रिडक्शन हुई कि उनकी जो आयरन डेफिशिएंसी जो थी उनको सप्लीमेंट के ज़रिए या उनमें जो भी वीकनेस या जो भी डेफिशिएंसी थी उनको पूरा किया गया। ये जो हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं 2015 के डाटा की बात कर रहे हैं कि जो एक 2011 में हमने एक सर्वे किया था उसमें जो सी ये हो रही थी, ये पीछे जो है इन 2011 6.9 मिलियन चिल्ड्रन डेथ ड्यू टू चाइल्ड मोर्टेलिटी में आएगा ना। तो फिर 2011 के बाद इन गोल्स पे काम किया गया, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पर। फिर ये हमने गोल्स को अचीव किया 2015 में, जब दोबारा सर्वे किया गया कि 67% जो रिडक्शन हुई थी चाइल्ड मोर्टेलिटी में और 75% रिडक्शन हुई थी मैटरनल डेथ में। और सब्सटेंशियल प्रोग्रेस हुई थी नॉर्थर्न अफ्रीका में एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एशिया में। इनकी जो डेथ रेट थी वो काफ़ी रिडक्शन हुई थी इन सब में, लेकिन जो लोएस्ट रिडक्शन हुई थी
वो सब सहारान अफ्रीका में और ओशियाना में हुई थी, अकॉर्डिंग टू 2015 डाटा। अगर हम ग्लोबली देखें तो 40.1% डेथ ड्यू टू न्यूनेंटल, जो हमारे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनकी जो ओवरऑल जो डेथ रेट है वो 40.1% है, बिकॉज ड्यू टू द वीकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम एंड नो अटेन द प्रॉपर न्यूट्रिएंट। कि एक तो उनका जो मेटरनल की डेफिशिएंसी की वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम था वो तो पहले ही वीक था, लेकिन बाद में भी उनको जो न्यूट्रिएंट की जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से ग्लोबली ये इतनी परसेंट जो है ना डेथ रेट होती थी या हो रही है 40.1%। जी चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की अब हम बात करेंगे आगे। इन 2011 वन ऑफ द फोर चिल्ड्रन स्टंटिंग, मतलब जिस अगर इसको परसेंटेजेस में देखा जाए तो 26%, एंड अंडरवेट जो था 1 in 6 लाइक 16%, वेस्टेज जो था 1 in 12 8%, nearly 20 million children suffer severe acute malnutrition, and lower birth weight है Southeast Asia में reduced from 80.0% to 11.6, इतने परसेंट में रिड्यूस हुआ था सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में, बाकी में नहीं, सब कॉन्टिनेंट में नहीं, सिर्फ एशिया में जो हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे काम किया उस पर इतने परसेंट जो थी वो रिडक्शन हुई 18 to 11%। एंड अफ्रीका की अगर बात करें तो स्लाइटली डिक्रीज फ्रॉम 15 to 14%, एंड साउथ एशिया हाईएस्ट फ्रॉम 34% to 27%, एंड ग्लोबली रेट्स रिमेन अनचेंज एट 15%। ये हम मुख्तलिफ सब कॉन्टिनेंट की बात की गई है ना यहाँ पे, अफ्रीका साउथ एशिया, लेकिन अगर ग्लोबली देखा जाए तो 15% जो था वो अनचेंज रहा था रिमेन। एक सर्वे भी किया गया, वो सारी जो पॉलिसीज थी उन पे वर्क भी किया गया, लेकिन 50% जो थे वो अनचेंज थे। Adult overweight and obesity. Globally in 2008, one of the three adults are overweight, in which 34% of men and 35% of women include. And 1 in 10 men, like 10% and more than 1 of the 10 women are obese. ये 2008 की बात कर रहे हैं। Vary between regions and income groups. हाईएस्ट रेट फाउंड ओवरवेट अगर देखा जाए तो हाईएस्ट रेट जो था वो अमेरिका में था, लाइक 50% वहाँ पे ओवरवेट थे और मोर देन 20% आर ओबीस, एंड अंडर मिडल इनकम है हाईएस्ट इनकम ग्रुप में, ये भी बहुत ज़्यादा ये था ओबीस रेट जो था। मोर कॉमन इन वुमेन डबल 1980 एंड 2008 में, लाइक 1980 सेंचुरी में जो था वो 8% था, लेकिन 2008 में जब दोबारा ग्लोबली देखा गया तो वो 40% रेट हो चुका था वुमेन में ओवरवेट का। अगेन मैं कहूँगी कि आप परसेंटेजेस देखकर परेशान मत हो जाना सारी क्लास, क्योंकि ये कंटेंट के लिए ये ज़रूरी था यहाँ पे डिस्कस करना। चलिए जी। मैम हाँ जी। मैम फिर जस्ट यही याद करना है कि 1 in 10 मैन हाँ जी। आर ओबी। मैम जस्ट फिर यही हम याद करेंगे क्या कि 1 in 10 मैन आर ओबीस। हाँ जी, आप जो परसेंटेजेस है ना वो रहने दीजिएगा, ओके मैम। क्योंकि मतलब ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगी आई नो, लेकिन डिस्कस करना भी ज़रूरी था जो हमारे पास एचईसी की तरफ से कंटेंट हैं उसके मुताबिक, कि क्या चैलेंजेस थे और कितने मतलब क्या क्या चैलेंजेस थे, कितने वो फैल रही थी, फिर हमने उनको रोकना कैसे है, क्योर कैसे करना उस डिजीज को। इसलिए जो मतलब जो हाईलाइटेड है लाइक 1 in 10% या पीछे जो है, जैसे ये मैंने न्यू मेंटल किया था 41%, तो इसके नीचे और भी तो परसेंटेजेस है ना, तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो
हाईलाइटेड है ना बस वही। जैसे ये लेस देन जो 5 ईयर्स हमारे चिल्ड्रन हैं वो किस किस वजह से उनका डेथ रेट ज़्यादा है, कौन कौन सी डिजीज़ हैं, उसमें निमोनिया आ जाएगा, डायरिया आ जाएगा, मलेरिया आ जाएगा, और न्यूनेंटल कंडीशन, पुअर कंडीशन जो थी। नीमिया जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये काफ़ी जो है डेफिशिएंसी होती है प्रेग्नेंट वुमेन में, तो उसका देख लीजिएगा कितनी इसकी परसेंटेज है। बाकी ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे विटामिन एंड मिनरल माल न्यूट्रिशन, वही सबसे पहले हम आयरन डेफिशिएंसी एंड एनीमिया की बात करेंगे कि 2 बिलियन पीपल अफेक्टेड वर्ल्ड वाइड, सीवियर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, प्री स्कूल एज चिल्ड्रन एंड वुमेन के एनीमिया डेफिशिएंसी जो है ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन में होगी और प्री स्कूल एज चिल्ड्रन में होगी। हाईएस्ट अमंग इन प्री स्कूल चिल्ड्रन 47.4% एंड लोएस्ट इन मेन 12.7%, highest in Africa, 2 out of 3 preschool children, 67.6% rate in Africa. Iron deficiency and anemia, Southeast Asia region highly affected with 350 million individuals. आज के लेक्चर में तो सारी परसेंटेजेस ही हैं, तो यहीं तक हम रखते हैं, आयरन डेफिशिएंसी और अनीमिया तक। ये परसेंटेजेस हैं, हम थोड़ी थोड़ी करके ना कवर कर लेंगे सारी, मगर आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं इतनी नहीं दूंगी परसेंटेजेस जो है ना पेपर में। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? मैम ये स्लाइड्स हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, पिछली भी स्लाइड रहती है ना, वो भी मैं शेयर कर दूंगी, और ये भी। यस मैम, लास्ट स्लाइड्स भी रहती हैं। मेरा ख्याल है जो 3 पीपीटी फाइल होगी ना, बस वहीं तक आपका मीट आएगा, यहाँ से फिर हम फाइनल में ले जाएंगे। मैम फिर यहाँ से आगे कितना है, आई मीन इसके अलावा और कितनी स्लाइड्स हैं? सिलेबस अभी काफ़ी है आप लोगों का, मगर मैं मीट जो है ना पिछली स्लाइड तक ही रखूंगी। मैम जो लास्ट स्लाइड्स अभी आप हमें भेजेंगी वहां तक जो ये भी वाली रहती अभी हैं? हाँ, एक मिनट, आपको कंफ्यूजन ना हो, जो ये वाली आज मैं नहीं शेयर करूंगी, जो मैं पिछली स्लाइड है ना वो शेयर करूंगी, फिर 3 पीपीटी फाइल आप लोगों के पास हो जाएंगी, वो तीनों हम मीट में लेकर जाएंगे। वो आप सारे कंफर्म कर लीजिएगा, आप सबके पास तीनों फाइल्स हैं, ये मैं अगली क्लास में शेयर कर दूंगी। और देखिए ओके अभी मैम। सिलेबस तो काफ़ी है, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये जो परसेंटेजेस हैं ये मैं इंक्लूड नहीं करूँगी, तो ज़्यादातर ये परसेंटेजेस ही निकल जाएंगी, ये सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए हैं। और जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हाईलाइटेड है बस वही आपने करनी है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, बाकी ये नहीं करनी। जैसे ये जो अभी शो हो रही है कि ये 12.7%, 47.4, ये रहने दीजिएगा आप सब जो है ना, ठीक है। सारे चुप कर गए हैं, मैं कह रही हूँ कि नहीं परेशान होना, मैं नहीं दूंगी ये परसेंटेजेस, ये ज़रूरी थी मैम शेयर समझ ही नहीं करना। आ रही, मुझे पता है ही परसेंटेजेस इसमें। ये देखिए ना, मैं कह रही हूँ ना, ये जैसे ये इम्पोर्टेंट है 41.1% कि कितना डेथ रेट था न्यू नेटल का, बस ये आपने याद करना है। अब देखिए ना, ये सारे देखेंगे तो परेशान तो होना ही है, ये पीछे नीचे जितनी सारी है नहीं करेंगे हम लोग। बाकी ये देखें, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो था, जब ये अप्लाई किया गया तो कितने परसेंट रिडक्शन रेट हुआ था। बाकी ये नीचे वाला सारा रहने दीजिएगा जो भी है कि कहाँ कहाँ पे प्रोग्रेस हुई थी। बाकी ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है ये इम्पोर्टेंट है।
ये बाकी ज़्यादातर जो है ये आपकी नॉलेज के लिए, इतना ये परसेंटेजेस याद करने की ज़रूरत नहीं है और मैं दूंगी भी नहीं, इसलिए थोड़ा सा बोल पड़े। ऐसे हो गया जैसे पता नहीं सबको क्या हो गया है। ओके मैम। मैम हमारा मिड ऑनलाइन होगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि होगा तो ऑनलाइन ही, लेकिन पता नहीं असाइनमेंट देंगे या मैं पेपर कंडक्ट करूंगी। होगा, अगर पेपर होगा तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। ओके मैम। 14 से हैं अभी आपके मिड, अभी आपकी क्लासेस होनी है काफ़ी उससे पहले। 3 तो इसी यस वीक मैम, है ना। 14 से हैं। जी मैम। तो कल भी आप लोगों की क्लास है जो मिस हुई थी लास्ट फ्राइडे। इस स्लाइड्स में तो ज़्यादातर परसेंटेजेस ही हैं जो इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे बहुत जल्द। ठीक है। अटेंडेंस लगा दी है सबने? यस मैम, लिखा दिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।